السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دھیان سے تھوڑا دھیان دے کے سنیں. جیسا کہ ہماری کلاسیں ہوتی ہے اور کلاسیں ہم جو ہے تجوید کے لگاتے ہیں تاکہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے پڑھیں سیکھیں انشاءاللہ. اور تجوید میں جو ہے ہم پہنچ چکے تھے کہاں پر؟ کل ادغام تک. ادغام میں ہم نے ادغام کی 2 قسمیں بتائی تھی پرسوں. کل کی تو جو ہماری غیر حاضری تھی، چلو کچھ طبیعت ہونے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آج میں آپ کو پھر تھوڑا سا پچھلی والی کلاس سے جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ کل جو ہم نے پڑھایا تھا وہ ادغام پڑھایا تھا پرسوں، اور ادغام کی 2 قسمیں بنائی تھی. ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. ایک تو ادغام ود غنہ اور ایک ادغام وداؤٹ غنہ، بنا غنہ کے. ٹھیک ہے، تو ادغام غنہ کے ساتھ جو ہے وہ کتنے ورڈ ہیں؟ وہ 4 ورڈوں کے ساتھ جو ہے ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے. کون کون سے ورڈ ہیں وہ؟ یا کون کون سے حرف ہیں؟ یا واو میم نون. یا واو میم نون. اگر ادغام کے بعد ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام ود غنہ کے ساتھ ہوگا. اس کی مثالیں میں نے بتائی تھی، جیسے یہ ہے نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو کیا ہوگا یہاں پر؟ ادغام ود غنہ می یوم. اور ادغام جو میں نے بتایا تھا بنا غنہ کے جو ادغام ہوتا ہے، ادغام تو کرنا ہے لیکن وہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے. تو وہاں میں نے 2 حرف بتائے تھے آپ کو. کون کون سے بتائے تھے وہ؟ لام اور را. اور اس کی مثال بھی میں نے دی تھی بلا غنہ. بلا میں نے وداؤٹ غنہ. ٹھیک ہے، تو اس کا بتایا تھا میں نے لام اور را 2 حرف. یومن میں ود غنہ اور لام را میں وداؤٹ غنہ. غنہ کے کتنے حرف ہیں ٹوٹل؟ نہیں، ادغام کے کتنے حرف ہیں؟ 6 ہے نا. 6 میں سے 4 ادغام ود غنہ اور 2 جو ہے وداؤٹ غنہ یعنی بنا غنہ کے ہم پڑھیں گے. تو یہ جو ہے تنوین کی جو ہے ہماری پریکٹس پوری ہو گئی اور پورے ہو گئے ہمارے تنوین کے قاعدے. ایک بار پھر سے میں پورا جو ہے ریویژن کر دیتا ہوں، اور جو کچھ ہمارے نئے بھائی جڑے ہیں وہ تھوڑا دھیان دیں گے. پھر انشاءاللہ اگلے قاعدے کی طرف چلتے ہیں، اگلے رول کی طرف. اس رول پر ایک بار سرسری نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو جو کچھ چیزیں یاد نہیں تھی وہ پھر جو ہے یاد آ جائیں گی کہ وہ کیا ہے. اصل میں شروع میں نے بتایا تھا نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے تھے؟ 4. نون ساکن یا تنوین کتنے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین. اگر کہیں بھی آپ نون ساکن دیکھو قرآن میں یا تنوین دیکھو تو وہاں پہ 4 قاعدے ہو جاتے ہیں، 4 رول ہوتے ہیں وہاں پر. کون کون سے؟ 4 قاعدے ہوتے ہیں. نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، 4 قاعدے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں 4 رول ہے. ٹھیک ہے، 4 رولز. ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں وہ 4 قاعدے؟ پہلا نمبر اظہار. دوسرا پہلا تھا اظہار. دوسرا ادغام. تیسرا اقلاب. چوتھا اخفاء. پھر میں نے بتایا تھا ان کی میننگ. اظہار کی میننگ کیا ہے؟ ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے ادغام کو بتایا تھا. ادغام کو کیا بتایا تھا؟ ملانا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اقلاب کو مانا چھپانا. اس کے بعد اخفاء کا مطلب اس کا بدلنا. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. جو نئے آئے وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بدلنا. اس کے بعد کیا ہے؟ چھپانا. ٹھیک ہے، تو ظاہر کرنا، ملانا، بدلنا اور چھپانا. پھر میں نے اظہار کے حروف بتائے تھے. کتنے حروف سے اظہار کے؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا. اور اس کیسے پڑھ سکتے ہیں؟
ब्रदर्स करके ना ऐन गैन हाफा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हरूफ हल्के भी कहते हैं क्योंकि हलक से अदा होते हैं ये 6 हमजा हा ऐन हा गैन हा। उसके बाद मैंने इदगाम के कितने हरूफ बताए थे? 6। कौन कौन से? इनका तो मैंने एक मजमुआ ही बताया था। यर मजमुआ है, यर 6 हरूफ है। इनमें से लाम और रा, एक तो रा है और एक ला है, ये क्या होंगे? इदगाम विदगुन्ना, विदाउट ला, ला बोले तो नहीं, इदगाम नहीं, ठीक है। और बाकी सब में इदगाम होगा। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हैं लाम और रा। इसको लिखेंगे विद, ठीक है। बाकी विदाउट, ये विदाउट है। हाँ उसमें जगह है। गुन्ना को बोलो 2 बार बोलना, जैसे इन्ना, ये हो गया गुन्ना नहीं। हाँ क्या क्या अच्छा गुनगुना से आते हैं, गुनगुनाते हैं ना हम लोग, गुनगुनाने से विदाउट, विदाउट कौन सा? यू में, इसमें भी हो या वाव में। ये विदाउट नहीं है, विदाउट वो है लॉन्ग वाला। हाँ हमें पढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा ये तो हो गया विदाउट, तो ये हो ये गया, विदाउट है। ये विदाउट हो गया, और ये हो गया विद। ठीक है, 2 किस्में हो गई इसकी। इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 यहाँ गए, 4 यहाँ गए, 6 आगे चलेंगे। इखलाक कितना बताया था मैंने? एक कौन सा? इसने लास्ट वाला हर्फ ले लिया। अभी मेरे पास जो मेरा लास्ट वर्ड है वही लेते हैं, ठीक है। इरफा, इरफा कितने हो गए? 15 है। ये भी लिख लो, याद रहेगा। ता, सा, जीम, जीम के बाद आ खाली है, दाल, दाल खाली है, सा, शी, सही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। इसका एक फोटो ले लो, एक शॉर्ट समझे इसको। हर कहाँ होगा? नून साकिन, बोलो नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद। जब आप कुरान नून साकिन देखो या तनवीन देखो, उनके बाद अगर हरूफ इजहार में से कोई हर्फ आएगा तो इजहार होगा, हरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम होगा, हरूफ इक़लाब में से कोई हर्फ आएगा तो इक़लाब होगा, और हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आएगा तो वहाँ पर इख्फा होगा। आसान है ना? बोलो नून साकिन या तनवीन के बाद अगर इजहार के हर्फों में से कोई एक हर्फ आएगा तो इजहार होगा। इसको रिपीट करो। इजहार के हरफों में से कोई हरफ आएगा तो इजहार होगा। आसान है ना? लिख दो ये रूल, याद है तो ठीक है। एक बार इसको उसमें लिख के डालता हूँ ग्रुप में, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं एक और की तरफ, एक और रूल्स की तरफ। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? नून साकिन या तनवीन। अब पढ़ेंगे हम मीम साकिन। क्या पढ़ेंगे? अगर मीम साकिन आता है तो क्या करेंगे? मीम साकिन, मीम साकिन कैसे कहते हैं? ऐसा मीम जिस पर साकिन हो। लाम साकिन कैसे कहते हैं? रा साकिन, जीम साकिन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मीम साकिन के बारे में। अब देखिए मीम साकिन के कितने रूल हैं?
मीम साकिन have four three rules. कितने? Three rules. Three rules. उल्टा हो गया, सीधा करूँ क्या? इधर से लिखना पड़ेगा। अभी ये सही नहीं है ना तो मीम साकिन हिंदी में लिख देता हूँ। मीम साकिन के तीन rule हैं। तीन कायदे हैं। आज कोई दो याद करा दो एक जगह बोल रहे तबीयत सही नहीं है ये बोल रहा है सही चलने को सब छोटी ये आएगी, बड़ी आएगी, सही के बाद खा के हां बढ़िया है। तीन कायदे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो नंबर 1 इदगाम। नंबर 1 शफवी। शफवी बोलते हैं क्योंकि ये जो रूल्स है सब होंठों के जरिए से हम पढ़ते हैं, इसलिए सबको क्या बोलेंगे? शफवी। नंबर 1 इदगाम शफवी। शफवी आ रहा है समझ में? दूसरे रूल को क्या बोलते हैं? इख्फा। इख्फा शफवी, ठीक है। अब तीसरा रूल कौन सा है? इजहार शफवी, ठीक है। 3 रूल है मीम साकिन के। कितने कायदे हैं? 3 कायदे। कौन कौन से हैं? इजहार शफवी। उसके जो कायदे मैंने बताए थे वो अलग हैं, लेकिन ये कायदे कुछ अलग हैं, ठीक है। वो जो मैंने बताए थे वो याद रखना है, बाकी इन पर ध्यान दो, फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। इदगाम शफवी, इदगाम करना है लेकिन होंठों के जरिए से करना है। इख्फा शफवी, इख्फा करना है लेकिन होंठों से ही करना है। होंठों के जरिए से, नाक में तो आवाज़ आएगी लेकिन होंठों के जरिए से तकरीबन होगा। इजहार शफवी, इजहार भी करना है, होंठों से करना है लेकिन बिल्कुल जाहिर करके करना है। ये इसमें होंठों का ज़्यादा करेक्शन होता है, ठीक है। आसान है, जिसने नून साकिन तनवीन के कायदे याद कर लिए, समझ में आ गया ये चीज़, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। वही रहेंगे क्या? देखो मैं बता देता हूँ। इदगाम, इदगाम मीम साकिन के बाद अगर क्या आएगा? दूसरा मीम आएगा। मीम साकिन के बाद अगर मीम आएगा तो वहाँ पे क्या होगा? इदगाम शफवी, ठीक है। इसका एक ही वर्ड है, कौन सा? मीम, ठीक है। जैसे अब उसमें खोलो, पेज नंबर दिखाता हूँ। मीम साकिन का बयान किधर है इसमें? पेज नंबर कितना होता है? ये है पेज नंबर 35, ठीक है। देखें, इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। तो मीम को मीम से मिलाकर क्या पढ़ेंगे? गुन्ना पढ़ेंगे। इसका कायदा क्या है? मीम साकिन के बाद अगर दूसरा मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। कैसे? उसमें मिसाल लिखिए, वो बताऊंगा। इलैकुम मुरसलून, इसका एक ही हर्फ है, ध्यान रखना। इसका एक हर्फ है और इसका भी एक हर्फ है, बा। बाकी तमाम हुरूफ इसके हैं, ठीक है। ऑल। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मुरसलून, ठीक है। अब देखो मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको इदगाम करेंगे और इदगाम करके गुन्ना करेंगे इसमें, ठीक है। इलैकुम मुरसलून,
इसमें जो है होठों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए इनको शफवी बोलते हैं, ठीक है। तो इल्गाम कैसे करेंगे? इल्गाम शफवी कहाँ होता है? जब मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ जाए तो क्या करेंगे? वहाँ पे मीम को मीम से मिलाकर इल्गाम कर देंगे, गुन्ना कर देंगे, ठीक है। तो इलैकुम मुरसलून, वहाँ पे तशदीद दी होगी ऐसे, मन दो बार बोलना है ना। बार बार बता तशदीद इसलिए है कि उसको जोड़ देते हैं। इलैकुम मुरसलून, तो सिंपल सी बात है, मीम साकिन के बाद अगर कोई मीम आएगा तो वहाँ पर इदगाम होगा, मीम को मीम से मिलाकर क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे, ठीक है। इलैकुम मुरसलून, और गुन्ना जो है एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। जहाँ तक आपकी तबीयत करती है उसका जो मेजरमेंट है वो उतना ही है कि आपका दिल मान जाता है कि आप कलिप पढ़ लिया, ठीक है। इलैकुम मुरसलून, ये हो गया इदगाम शफवी की मिसाल। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 2, कायदा नंबर 2, इख्फा शफवी। इख्फा कहाँ होता है? ये यहाँ ध्यान रखना, मीम साकिन ही देखना पड़ेगा। हर जगह मीम साकिन देखते हैं और उसके बाद वाला हर्फ देखते हैं। तो इख्फा शफवी का कौन सा हर्फ है? बा। तो मीम साकिन के बाद अगर बा आएगा तो क्या होगा? वहाँ पे इख्फा शफवी होगा। देखो इसमें मिसाल दी होगी, इन्ना रब्बहुम, ठीक है। इन्ना छोड़ कर रब्बहुम लिख देते हैं ना। देखो रब्बहुम मीम साकिन है ना, इसके बाद दूसरा क्या आ रहा है? बा आ रहा है, बिहिम, ठीक है। बिहिम, मीम साकिन के बाद अगर बा आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे? इख्फा करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? रब्बहुम बिहिम, कैसे करेंगे? इख्फा शफवी, मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा करेंगे, ठीक है, गुन्ना के साथ। रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम। अगली मिसाल देखो, तरमीहिम बिहिजारा, तरमीहिम बिहिजारा, तरमीहिम बिहिजारा, तरमीहिम बिहिजारा। इख्फा शफवी समझ गए ना? अगर मीम साकिन के बाद बा आएगा तो वहाँ पर क्या होगा? इख्फा होगा। तो यहाँ पर इख्फा शफवी होगा। इख्फा शफवी मतलब मीम इख्फा करके गुन्ना करेंगे, ठीक है। रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम। तीसरा कायदा बताया था मैंने, इजहार शफवी। कौन सा? इजहार शफवी। अगर मीम साकिन के बाद ना मीम आए ना बा आए तो क्या करना है? वहाँ पर इजहार करके पढ़ना, बिल्कुल जाहिर करके, ठीक है। तो टोटल हुरूफ कितने हुए? 28। 28 में से मीम और बा को अगर ना मिले, मीम और बा को छोड़कर जितने भी हुरूफ आएंगे तो वहाँ पर इजहार होगा। क्या होगा वहाँ पर? इजहार। वहाँ पर बिल्कुल जाहिर करके और क्लियर करके पढ़ेंगे, इजहार शफवी। जैसे हम फीहा, उन्ना नहीं होगा, हम फीहा, हम फीहा, हम फीहा, हम फीहा, फीहा। मीम साकिन के बाद फा आया, ठीक है, इजहार होगा। तो ये ध्यान रखना, इदगाम कब होता है? जब मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आएगा तो क्या होगा? इदगाम होगा। इख्फा कब होगा? जब मीम साकिन के बाद बा आएगा तो इख्फा होगा। और इन दोनों के अलावा जितने भी हरूफ होंगे उनमें क्या होगा? इजहार कर कर पढ़ा जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इसकी एक फ़ोटो ले लो और उसमें डाल देना। ये आसान है, नून साकिन और तनवीन से आसान है ना, क्योंकि इनमें हर्फ की ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसमें एक हर्फ मीम है, इसमें एक हर्फ बा है, बाकी सारे जो है इजहार में आ जाता है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पेज नंबर 35 को खोलें। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3। कौन कौन से हैं?
जिनके बाद भी आए तो इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, इजहार शफवी। ठीक है, इदगाम शफवी का एक हर्फ है कौन सा? मीम। इख्फा शफवी का एक हर्फ है कौन सा? बा। उसके अलावा तमाम हुरूफ किसके हैं? इजहार शफवी के, इजहार शफवी के। ठीक, तो मीम साकिन का इदगाम शफवी कहाँ होगा? अगर मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा? इदगाम शफवी। मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना करेंगे। इख्फा शफवी कहाँ होगा? मीम साकिन के बाद अगर बा आएगा तो वहाँ पर इख्फा कर कर पढ़ेंगे। और इजहार शफवी मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा जितने भी हरूफ आएंगे वहाँ पर क्या होगा? इजहार शफवी होगा। अब मिसाल देखें, सबसे पहली मिसाल इन्होंने दी है इदगाम शफवी की। पढ़ें, इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून। मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया है, लिहाजा वहाँ पर इदगाम शफवी होगा। लहुम मा यशाऊन। उसके बाद इख्फा शफवी की मिसाल है। इख्फा शफवी कैसे किसे कहते हैं? मीम साकिन के बाद अगर बा आएगा तो वहाँ पर क्या होगा? इख्फा शफवी होगा। कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पर। इन्ना रब्बहुम बिहिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम। एक तो इन्ना का गुन्ना होगा, एक किसका होगा? इख्फा शफवी का। इन्ना रब्बहुम बिहिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम। तरमीहिम बिहिजारा, तरमीहिम बिहिजारा, तरमीहिम बिहिजारा, तरमीहिम बिहिजारा। वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन। फबश्शिरहुम बिअज़ाब, फबश्शिरहुम बिअज़ाब, फबश्शिरहुम बिअज़ाब। फबश्शिरहुम बिअज़ाब। अब इसके बाद इजहार शफवी की मिसाल है। मीम और बा के अलावा जो भी हरूफ मीम साकिन के बाद आएगा वहाँ पर क्या होगा? इजहार शफवी होगा। जैसे हम फीहा, हुम फीहा, हम फीहा, हुम फीहा, लकुम दीनुकुम। लकुम दीनुकुम। बिल्कुल भी गुन्ना नहीं होगा। मीम की जो सिफत है उसमें हल्का सा गुन्ना तो होता ही, वो तो होगा ही, बाकी तो कुछ नहीं है, बढ़ाना नहीं। लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। लम यलबसू, लम यलबसू, लम यलबसू, लम यलबसू। अम लम तुनज़िरहुम। अम लम तुनज़िरहुम। तुनज़िरहुम में क्या हो रहा है? कौन सा कायदा पाया जा रहा है? तुनज़िरहुम, नून साकिन के बाद नून आ रहा है ना, नून इख्फा है। नून साकिन के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है? देखो जरा फटाफट। जाल आ रहा है ना? जाल किसका हर्फ है? इख्फा का, तो इख्फा करेंगे ना। अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम। लहुम अजरुन अज़ीम, लहुम अजरुन अज़ीम। अजरुन अज़ीम। अजरुन अज़ीम। अज़ीम है नहीं ना? लहुम अजरुन, अजरुन। ये आयत पूरी होगी तो वहाँ ऐसा आएगा, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तो ये हो गया ना, मीम साकिन का कायदा हो गया। मीम साकिन का कायदा बहुत आसान था, क्योंकि जिसने नून साकिन वाला कायदा समझे होंगे ना, उसी बेस पे ये चीज़ है। यही है इसका शॉर्ट। एक एक मिसाल दे दी, उसके हरूफ दे दिए और रूल बता दिया। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। रूल इसका ये है कि मीम साकिन के बाद अगर मीम आएगा तो इदगाम, मीम साकिन के बाद अगर बा आएगा तो इख्फा, और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आएगा तो वहाँ पर क्या होगा? इजहार शफवी होगा।